student, as you know that I am teaching administrative law, and today we will discuss the relation between administrative law and constitutional law. The relation between administrative law and constitutional law. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आज हम संविधान और प्रशासनिक विधि में क्या संबंध हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को लेकर प्रश्न भी आते रहते हैं और इसीलिए इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए। आज मैं चर्चा करूंगा प्रशासनिक विधि और संविधान में क्या संबंध है, दोनों की क्या स्थिति है, दोनों एक दूसरे से जुड़े विषय हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं या निर्भर नहीं हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मैं शुरुआत करूंगा इंग्लैंड। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई लेक्चर आई विल स्टार्ट माई लेक्चर with some fact regarding the matter of England. In England, what is going on? What is the fact of England? In England, there is a written constitution, and in England, due to of unwritten constitution, there is no direct link or relation with administrative law. Basically, in England, the ordinary laws they are very much in connection with the administrative law, and all the administrative authorities and officials and functions shall or we can say or had or having be in relation with ordinary law with administrative law. All the actions or inactions, all the activities regarding the matter of administrative law, regarding the matter of administrative officials, basically look after by the ordinary laws, and if anything happening wrong by the administrative officials in land, then the ordinary laws, as per the ordinary law provisions, the things shall be taken into consideration and try to solve out or sort out those problems. This is the scenario regarding the matter of इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लैंड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण प्रशासनिक विधि के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ऑर्डिनरी जो कानून है इंग्लैंड का, साधारण कानून है, उस कानून के तहत कुछ हद तक उनको गवर्न करने का विषय दिया गया, प्रशासनिक विधियों से संबंधित, प्रशासनिक अधिकारियों से रिलेटेड, और ऑर्डिनरी लॉ ही बहुत हद तक जिम्मेदार होता है प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशासनिक व्यवस्था के गुण दोष या किसी भी प्रकार की त्रुटि हानि लाभ हेतु कुछ भी एक्शन लिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, तो उसकी निगरानी, उसका देख रेख अगर कोई कर सकता है इंग्लैंड में, तो ऑर्डिनरी लॉ कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों की सिनेरियो अलग है। प्रोफेसर डायसी ने भी यही कहा है, प्रोफेसर डायसी ने भी यही कहा है कि there is no special impact on administrative law on the institutions of unwritten, and as Dicey explained it, the rules which in other countries form part of the constitutional law, the rest of the ordinary laws of the land, means law of the lands जो है, ordinary law of the lands is very much responsible from the activities of the administrative officials and authority. To the English writer, virtually there is no difference between our constitutional and administrative law. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में प्रशासनिक विधि और संविधान विधि में कोई बहुत बड़ा संबंध या रिलेशंस नहीं है। अकॉर्डिंग टू वेड क्या कहते हैं? वेड कहते हैं, प्रोफेसर डायसी ने क्या कहा, इसको मैंने लिखा, डायसी ने क्या कहा, देयर इज नो virtual
relation of administrative law and constitution, administrative law and constitutional law in England. We are discussing about England, but प्रोफेसर वेड ने क्या कहा? Professor Wade has given to some extent distinct opinion. Professor Wade क्या कहे? Professor Wade कहते हैं कि administrative law is considered as the branch of constitutional law since it flows directly from the principles of the rule of law. क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द branch of constitutional law since it flows directly from the principles of rule of law. प्रोफेसर वेड कहते हैं कि प्रशासनिक विधि क्या है? संविधान का एक अभिन्न अंग है, एक जुड़ा हुआ संबंध है जो विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित शासन की व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमता है। और यही स्थिति regarding the matter of the statement of Wade regarding the relation of administrative law and constitutional law is very much practical in our country, India. When we see minutely the relation of administrative law and constitutional law, we can feel that yes, really, administrative law is the very branch of constitutional law, and since it flows from the principles of the rule of law, विधि के शासन के इर्द गिर्द ही प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती है, ऐसा प्रोफेसर वेड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड क्या कहते हैं? प्रोफेसर हॉलैंड क्या कहते हैं? प्रोफेसर हॉलैंड कहते हैं कि points out some functional difference between the two subjects. Points out certain functional difference. Points out क्या करते हैं? Points out certain functional difference. Functional difference between the two means administrative law and constitutional law. क्या वो कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ
describe the organs of the government. Organs of the government. Whereas administrative law describes the organs of the government in rest. Whereas administrative law describes the organs of the administration in motion. मीन्स संवैधानिक विधि क्या करता है? संवैधानिक विधि जो है वह सरकार के विभिन्न अंगों की चर्चा करता है, की व्याख्या करता है, रेस्ट वे में, स्थिर अवस्था में वह व्याख्या करता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है? सरकार के विभिन्न अंगों का अर्थात प्रशासनिक व्यवस्थाओं का मोशन वे में एक्सप्लेन करता है। एकदम मोशन मीन्स कैसे चलना है, प्रशासनिक विधि कैसे चलती है, सरकार कैसे चलती है, उसके अंग कैसे चलते हैं, इसकी चर्चा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वी कैन से इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट as well as describes the organs of the administrative authorities in motion. वो कैसे चलना चाहिए, कैसे चलता है, इसकी चर्चा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारे ऑर्गन्स, स्टेट ऑर्गन्स की व्याख्या करता है, रेस्ट में करता है। REST, रेस्ट मीन्स मतलब सैद्धांतिक तौर से लिखी बातें हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसको प्रैक्टिकली करवाता है, प्रैक्टिकली करता है, प्रैक्टिकली क्रियान्वित करता है सारे विषयों का, संवैधानिक सिद्धांतों का, संवैधानिक व्यवस्थाओं का। दूसरे में क्या कहा गया है? दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या डिफिनेशन है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जेनिक्स क्या कहते हैं? प्रोफेसर जेनिक्स और प्रोफेसर जेनिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद दी, हाँ इसमें जेनिक्स भी कहते हैं। प्रोफेसर जेनिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ deals with the organization, functions, powers and duties of the administrative law deals with the organization, powers, functions, duties of administrative authority. Administrative law deals with the organization. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसकी चर्चा करता है? जेनिक्स कहते हैं कि यह ऑर्गेनाइजेशन क्या संगठन होगा, उस संगठन की क्या ताकत होगी, वह संगठन कैसे काम करेगा और उसका क्या दायित्व रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का। Whereas constitutional law deals with जबकि whereas constitutional law deals with the principles deals with the principles related to the organization, powers, functions
functions, organizations, powers and functions of the state. हमारा जो संविधान है वह सिद्धांत की बात करता है कि कैसे सरकार के अंग कार्य करेंगे, संगठन कैसे काम करेगा, सरकार के जो व्यवस्थाएं हैं, जो संस्थाएं हैं संविधान की कैसे काम करेंगे, क्या ताकत रहेगा, कार्य कैसे करेगी, कार्य करने की पद्धति क्या रहेगी, इसकी चर्चा हमारा संविधान करता है। तो हमने कोड डिफरेंस देखा। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन रेस्ट, and number 2, whereas the administrative law is having the powers from the constitutions, basically from the principles of the rule of law, the first thing. And second thing, administrative law deals with the organizations, powers, functions, duties of the administrative authorities. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस बात की चर्चा करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ संगठन कैसा होगा, उसकी ताकत कैसी होगी, कार्य करने की विधा प्रकृति कैसी होगी और उसका क्या कर्तव्य होगा। प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों और उनकी ताकतों के बारे में चर्चा करता है। और संवैधानिक विधि क्या करता है? जनरली derives the principles regarding the matter of organizations and powers of the organs of the state. आगे मैं हमेशा कहा हूँ कि भारत के संविधान के तहत ऐसे ढेर सारे उपबंध हैं जिसमें डायरेक्टली कहा गया है। पहले मैं उपबंध चर्चा करूंगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 आर्टिकल 30 लॉ को डिफाइन करता है। लॉ मीन्स रूल्स, रेगुलेशंस। आर्टिकल 30 विधि क्या है इसकी परिभाषा देता है। व्हाट इज लॉ? रूल्स एंड रेगुलेशन बाय लॉ, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशंस, स्कीम्स, डायरेक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनरी रूल, रेगुलेशन, स्कीम, डायरेक्शंस, नोटिफिकेशंस है। इसकी रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, स्कीम एंड डायरेक्शन, ये सारी चीजें कानून है। लेकिन ये चीजें अलग अलग तरीके से हमारे समझ आएंगे। रूल्स स्टैट्यूट में रहता है, रेगुलेशन स्टैट्यूट में रहता है, बायलॉज इस तरह। और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जब भी कोई भी आदेश निर्देश दिया जाता है वह भी एक कानून है। और यदि आदेश और निर्देश भारत के संविधान के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, विशेष तौर से पार्ट 3 का उल्लंघन करता है, तो वह आदेश और निर्देश शून्य माना जाएगा। इसको याद करके रखिए। प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा यदि किसी प्रकार का ऐसा आदेश दिया जाता है जो भारत के संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह आदेश, निर्देश, कानून, विधि, बनाया गया कानून, किसी इंस्टीट्यूट में यदि कानून बनाया गया, किसी राज्य सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया, किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा आदेश निर्देश दिया गया, तो आदेश निर्देश कानून बनाया गया है वह शून्य कानून माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 नहीं 32 32, 136, 226, 227, 299 and 300 ऐसे कुछ उपबंध हैं जिसको मैं कह सकता हूं कि प्रशासनिक अधिकारियों को नियंत्रित करने की व्यवस्था निर्धारित करता है भारत का संविधान। ये आर्टिकल याद करके रखिए। भारत के संविधान के उपबंध है जिसको हम जुडिशियल कंट्रोल कहते हैं। जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। जुडिशियल कंट्रोल मीन्स यदि किसी भी आदेश निर्देश प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा दिया जाता है, प्रशासनिक विधि के तहत प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिया जाता है, तो इन अनुच्छेदों का सहारा लेकर उस आदेश निर्देश को निरस्त किया जा सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। इसको याद रखिए। स्पेशल अपील भी
लाया जा सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव डिवाइस ऑफ जुडिशियल कंट्रोल। तो मेरे कहने का अर्थ है 265 को भी ध्यान रखना है। 265, 301, 265, 301, 311 और 340, 311 और 340 ये कुछ उपबंध है भारतीय संविधान के जो डायरेक्टली प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करता है। यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था जो संविधान से निकलकर उनको स्थापित करने का काम किया गया है, उनको स्थापना करने का काम इसलिए किया गया, प्रशासनिक व्यवस्था इसलिए बनाई गई है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का आपको फॉलो करना है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, डिस्क्रिशनरी पावर राइट डायरेक्शन में आपको काम करना है। जो भी विवेकीय अधिकार दिए गए हैं वो जनमानस के कल्याण हेतु लगना चाहिए, न कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार, किसी भी अपने लाभ हेतु उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। रूल ऑफ लॉ को हमेशा फॉलो करना है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हमेशा फॉलो करना है। इस 3 चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको आदेश निर्देश देना है और प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का विशेष ध्यान देना है कि संविधान की जो मूलभूत भावनाएं हैं, लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवाद, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and promote among them all, fraternity assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation, जो प्रियम्बल की मूल भावना है, उस मूल भावना को ध्यान में रखते हुए आपको आदेश निर्देश देना है। अन्यथा आपके आदेश निर्देश को धारा 32, 136, 226, 227, 299, 300, 265, 301, 311, 314 के तहत उसको ड्रेस किया जा सकता है। आज हमें पूरा विश्वास होगा कि आपको प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में क्या अंतर है, क्या सामंजस्य है, इसको आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।